Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is the human eye and the colorful world. So let's see the topic that we are going to cover in this chapter. The topics are the human eye, the defects of vision and their correction, refraction of light through prism, then dispersion of white light through prism, atmospheric refraction and scattering of light. So the first two topics that you can see, the human eye and the defects of vision and the correction. These two topics we are going to learn under the topic human eye, and the next is the colorful world. In this colorful world we are going to learn about the refraction of light through prism, then dispersion, atmospheric refraction, scattering of light, and obviously about some optical phenomenon that is occurring in the nature, like the formation of rainbow, then blue color of the sky. Okay, so let's begin with the topic, the human eye. Now, in this human eye, we are going to learn that how the different parts of the human eye all together work and forms the image of an object around us. We know that human eye, children, human eye is one of the important sensory organ that enables us to see this wonderful world. See, if when you close your eyes, you will be able to sense the things by touching it. You can smell it, but you can't see its color. So to see this colorful world, we need eyes. Okay, or I should say that these eyes make our world beautiful and colorful. Okay, so let's begin with the different parts of the human eye. These are the 9 parts that we are going to discuss in this lecture about the iris, pupil, cornea, eye lens, aqueous humor, retina, ciliary muscles, optic nerve, and vitreous humor. Okay, and here in this we'll see that how these parts work and what are the mechanisms, okay, of these parts. So here you can see that the cross section of the eye is been shown. Sorry, the cross section of the eye is shown here. From if you'll see the front, from the front the eye will look like this way. Okay, it will look like this way. लेकिन अगर हम उसे साइड से देखते हैं तो साइड से उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, जिसको ये जो है वो अंदर का पार्ट है, ये जो है ये आपको, ये जो सामने आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने दिखाया है, ठीक है। हाँ, और अगर आप सामने से देखेंगे बिना आई लैशेस वगैरह के तो आपको ये एक बॉल की तरह दिखेगी, जिसमें ये वाइट लिक्विड है सामने से दिख रहा है, और ये ब्लैक आई बॉल जो हमारे आंखों के अंदर होती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आइरिस, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस आइरिस, सो दिस ग्रीन पार्ट ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आंखें ली है उसका ग्रीन आइरिस है। बेसिकली जनरली ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन होता है किसी का, किसी की बहुत अलग आंखें होती है तो ब्लू कलर का भी होता है। सो आइरिस इज व्हाट दिस पार्ट, okay, basically this part is known as iris. So iris is actually having a kind of colored pigment in it. Okay, so whenever the ray of light from an object is falling on our eye, so iris absorbs the particular color from the light, ठीक है। जो भी आपकी रे ऑफ लाइट आंखों पे पड़ती है तो आइरिस क्या होता है, उसके अंदर एक कलर्ड पिगमेंट होता है और वो उस पिगमेंट के कलर के अकॉर्डिंग ही रे ऑफ लाइट में से कलर को एब्सॉर्ब करता है और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। तो वो जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उसी कलर का आइरिस हमें दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज द रे ऑफ लाइट्स आर फॉलिंग ऑन दिस आइरिस, सो दिस आइरिस इज एक्चुअली absorbing and reflecting back the green color of from the light. That's why it is looking in green color. Okay, and here if you see, so this is the this is actually of brown color. That means when the ray of lights are falling on this iris, so it will absorb brown colored light and reflect back in the atmosphere. Okay, that's why it looks like brown color. So iris is what, so basically when you are talking about the color of the eye of a person, so you are actually talking about the iris of that person. Okay, now let's move to the next part, that is pupil. Now here you can see pupil. Pupil is what, this dark spot, this is small dark spot
इन योर आई इज नोन एज प्यूपिल। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है, ये आप अपना जो ह्यूमन आई है, ये जो डार्क स्पॉट आपको दिख रहा है जहाँ मैं एरो दिखा रही हूँ, दैट इज योर प्यूपिल। ठीक है, अब इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सो दिस प्यूपिल इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ होल। एक ऐसा होल है जिसमें पार्ट ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी लाइट जो अपनी आंखों पे पड़ती है, तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो आंखों के अंदर जाती है। तो आंखों के अंदर जाने के लिए उसे एक दरवाजा चाहिए। वो दरवाजा कौन प्रोवाइड करता है? प्यूपिल। सो प्यूपिल एक्ट्स लाइक अ डोर फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट एंटर्स inside our eyes. Okay, so it is a hole, it is a kind of door which provides the path for the entrance of the light inside our eye. Okay, now the thing is that here the size of the pupil can be adjusted. अब ये जो साइज है प्यूपिल की, ये एडजस्ट हो सकती है, जो होल है ये एडजस्ट हो सकता है, एंड दैट इज बीन एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस आईरीज. ओके, whenever actually our eye is having a particular strength टू डील विद द लाइट. ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ उसका है जिससे कि वो, अब हमारी जो आंखें हैं वो लाइट से डील कर सकती है. अगर बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो भी हमारी आंखें बहुत ज़्यादा लाइट से भी डील नहीं कर सकती. जब बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है तो आंखें हमारी बंद होने लगती हैं, और जब बहुत कम लाइट होती है तब भी हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं. ठीक है, तो whenever a large amount of light is falling on our eye, then this pupil tends to contract. Okay, तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट आती है तो आपकी प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, तो दरवाजा छोटा हो जाता है, तो लाइट को कम जगह मिलती है जिससे कि वो आंख के अंदर जाए, और इस वजह से हमारी आंखें जो है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट से. जब ज्यादा लाइट होती है तो ये प्यूपिल क्या है, ये प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, और जिससे कि जब कम लाइट है और आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे, तो मैक्सिमम रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दिस होल एंड यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. So this contraction and expansion of the pupil has been done with the help of iris. ठीक है, तो iris क्या है, एक तरीके से दरवाजे का काम करता है, जो कि और जो मॉनिटर करता है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आंखों के अंदर एंटर होगी. एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट को भी जाने नहीं देता, और अगर कम अमाउंट, जब लाइट बहुत कम होती है तो वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जा सके और हम चीजों को देख सकें. ठीक है, तो इस तरीके से इसकी साइज रेगुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आई. ओके, now let us discuss about the third part, that is the lens of an eye. Okay, now here you see the lens of an eye has been shown with the help of this blue color, oh sorry, green color. ठीक है, यहाँ पे जो आइरिस थी उसको मैंने एकदम से थिन कर दिया है, जिससे कि आप क्या कर सके, लेंस को देख सकें. So this lens basically what it does, it helps in the refraction, or it helps in focusing the ray of light that is entering inside our eye. ठीक है, अब होल जो है, प्यूपिल जो है, उसके थ्रू जो है लाइट एंटर हुई, तो अब ये जो लाइट एंटर होने के बाद लेंस पे पड़ेंगे, और लेंस क्या करेगा, लेंस जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही है उन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस कर देगा. ठीक है, so this lens, you can see that this lens is actually in the convex shape. So we can say that our eyes act as in convex, our eyes are having convex lens, and it converges all the rays. Okay, it converges all the rays at a particular point. Okay, now let's see the next part of our आई, दैट इज कॉर्निया. ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया है, दैट मीन्स दिस इज दिस आउटर पार्ट. ठीक है, जो आउटर पार्ट है ये हमारा क्या है, कॉर्निया है. तो दिस इज द आउटर बल्जी पार्ट विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अवर आई ऑल्सो, एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट दिस एज ऑफ कॉर्निया. मैक्सिमम रिफ्रैक्शन क्यों होता है वो मैं अभी आपको, देखो एक ये पिक्चर दिखाती हूँ फिर आपको पता चलेगा. ये देखिए, अब आपको, आपने ये देखा, तो यहाँ देखिए दिस एम्प्टी पार्ट इज नॉट एक्चुअली एम्प्टी, दिस इज एक्चुअली फिल्ड विद द वाटरी सब्सटेंस, और ये वाटरी सब्सटेंस को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर. तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये पानी का होता है, 99% इट इज मेड अप ऑफ वाटर, एंड 1% इसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता है, सॉरी विटामिन एंड प्रोटीन होता है, which provide nutrition to your cornea and to your lens. ठीक है ना. So what happens when the lights are coming from an object, so they are traveling from air to the water medium. ठीक है,
एयर से ऐसे आ रही है, फिर इस एच के बाद उन्हें पानी आ रहा है, ठीक है। सो light rays has to travel from one medium to another medium, and when the lights are traveling from one to the other medium, and bending of the light takes place, ठीक है। So maximum refraction takes place at this portion, that is at cornea, and this is why, because lights are traveling from one medium to the another medium. Here it is water. Okay, then what happens? Then we are going to discuss about the next part, that is retina, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे लाइट एंटर कर गई। अब लाइट एंटर करने के बाद कहीं तो फॉल होंगी, मतलब इमेज किसी स्क्रीन पे बननी चाहिए ना, कुछ तो ऐसा पर्दा होना चाहिए जिसपे हमारी इमेज बनेगी। सो हियर this retina which has been shown with a red color, so this acts as a screen for the image formation, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो रेटिना पे होती है। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना एक्ट्स लाइक एन स्क्रीन। नाउ हाउ दिस इमेज फॉर्म्स, बिकॉज रेटिना इज मेड अप ऑफ light sensible light sensitive cells, okay। So whenever light falls on this retina, they get active, okay, and they get active and they form the image at the particular point, और वो जो point होता है उसको हम कहते हैं blind spot, जहाँ पे सारी rays जो है आके focus हो जाती हैं और image बनती है, ठीक है। तो रेटिना के लिए आप ये क्या कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स विच गेट्स एक्टिव व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। अब हम देखेंगे यस अबाउट द ऑप्टिक नर्व्स। देखिए ऑप्टिक नर्व्स है, ये आपको दिख रही होगी व्हाइट व्हाइट ऑप्टिक नर्व्स जो रेटिना से ही अटैच्ड है, ठीक है। अब रेटिना पे जो इमेज बन रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट सेल्स, ठीक है। बट हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक signals, okay, they are the electrical signal. So what is the working of this optic nerve? ये optic nerve क्या करती है, optic nerve converts this light into electrical signal, okay, and then this electrical signal is sent to the brain which construct the image accordingly, ठीक है। वो फिर electrical signal मिलता है brain को और फिर वो उस हिसाब से image construct करता है और perceive करता है, ठीक है। तो optic nerves converts light into electrical signal. Now see here children, you can see that this portion, this entire portion is filled with the vitreous humor. Okay, next is the vitreous humor. Now what does this vitreous mean? This vitreous means glassy. Glassy मतलब वैसा नहीं कि ग्लास की तरह थोड़ा कड़क होगा, ग्लास का मतलब होता है यहाँ पे, ग्लासी का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट। तो ये जो बीच में है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, जो जेली लाइक होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। So this vitreous humor is actually this vitreous humor helps in maintaining the shape of an eye, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंखों का शेप है उसको मेंटेन करने के लिए विट्रस ह्यूमर क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर ये विट्रस ह्यूमर बीच में ना हो, ये जेली लाइक मटेरियल ना हो, तो हमारी आंख क्या हो जाएगी, तो पिचक जाएगी, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर हेल्प्स इन maintaining the shape of our eye, and it is a jelly like material, and vitreous means glassy, which here it clearly means like transparent material, okay। Now let us discuss one another important part, that is ciliary muscles। So here you can see that ciliary muscles, ये जो आपको yellow part दिख रहा है, that is the ciliary muscles which is holding actually the edge of our आई लेंस, जो हमारी आंखों के लेंस को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स इज, we all know that whatever the object we are seeing through our eyes, that may be at any distance, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो वो कोई भी डिस्टेंस पे, वो काफी दूर भी हो सकते हैं, काफी पास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर दूर के लिए चाहिए तो हमें जो लेंस चाहिए वो अलग पावर का चाहिए होगा, पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो जो लेंस चाहिए वो अलग पावर का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान ने तो हमें एक ही मतलब दो आंखें दी है और उसमें एक ही तरीके का लेंस दिया है, अलग अलग पावर के लेंस तो दिए नहीं है। तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है, इसका मतलब ये है कि भाई उसका पावर जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो ये जो लेंस आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये लेंस के
कर्वेचर को एडजस्ट कौन करता है? दैट इज सिलरी मसल्स. So ciliary muscles provides fine adjustment to the curvature of this lens, to our eye lens, so that the proper refraction of the light can take place and a fine image of an object can be formed on retina. ठीक है. तो सिलरी मसल्स क्या करती है? आपके कर्वेचर, ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, इट इज नॉट एन हार्ड ऑब्जेक्ट, it is actually, it is also a jelly like, in this also the jelly like material has been filled. ठीक है. तो वो कंप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एक्सपांड भी हो सकता है. समझ आ रही है बात? जब आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो तब आपको क्या चाहिए? आपको कर्वेचर जो है वो कम चाहिए. तो जो आपका कर्वेचर कम चाहिए मतलब पावर आपका कम होना चाहिए. ठीक है. तो पावर कम होना चाहिए, तो ये जो चीज़ है, कर्वेचर कम होने का मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या हो जानी चाहिए? फ्लैट हो जानी चाहिए. तो वो सिलरी मसल्स क्या करती है? ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ खींच के उसको फ्लैट बना देती है जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है. जब पास होता है तो आपको क्या चाहिए? आपको कर्वेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए. तो ज़्यादा चाहिए तो पावर भी ज़्यादा होगी उससे. तो उस वजह से क्या करता है? फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. ठीक है. तो इनके, तो इस हिसाब से वेरेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू दैट ciliary muscles helps in contraction and expansion of this eye lens. Okay. अभी हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं. See here, this diagram shows that an object is placed at an infinite distance. Okay, so that's why the incoming rays are parallel. So these incoming rays are parallel. You can see here. So the rays are actually parallel, and sorry, the rays are parallel and they are focusing over here. So after refraction, see the refracted angle, you can see it is of very small amount, 10 डिग्री और 11 डिग्री ऐसा हम समझ सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं तो काफी कम रिफ्रैक्शन हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे पहुंच के यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है. तो यहाँ पर जब आ रही है तो यहाँ पे जो है कर्वेचर कम है, पावर आपका कम चाहिए. ठीक है. तो पावर कम चाहिए इस हिसाब से. अब आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट पास में होगा तो हमें कर्वेचर ज्यादा कर्वेचर चाहिए. ठीक है. ज्यादा रिफ्रैक्शन होने लगेगा. तो ये देखिए आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास में है, पास में है तो आपके ऐसे डाइवर्जेंट रेज आ रही हैं. तो वो डाइवर्ज तो हो नहीं सकती, हमें तो उन्हें कन्वर्ज ही करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही है. तो ये जो चीज है ये चीज आंखों के अंदर सेम पॉइंट पे रहती है. ठीक है. ये तो पर ये बाहर का जो ये जो कर्वेचर है वो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल. ये देखिए यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्शन का एंगल बन रहा है वो कहीं 45 डिग्री के अराउंड बन रहा है. ठीक है. तो देखो कंपेयर करते हैं. पिछला देखो, ये वाला पोर्शन सिर्फ आप देखिए, ये वाला पोर्शन जो है वो वही है. ठीक है. यहाँ पे हमें वो 10 डिग्री में डाइवर्ज होते मतलब डेविएट होते हुए दिख रही है और यहाँ पे वो 45 डिग्री पे डेविएट होते हुए दिख रही है. तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट the eye lens gets adjusted, and that adjustment is done with the help of this ciliary muscles. Okay. Then this power, the power of the lens that has been adjusted each and every time according to the situation or according to the distance of the object, this complete power is known as power of accommodation. ठीक है. which actually I am going to cover in the next topic. अगर आपको अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं. ठीक है. So this is all about the eye and its part and about its functioning. Hopefully आपको समझ में आया होगा. If you don't understand any of the point or about the function of any of the parts, then you can ask me personally or you can comment in the comment box. Till then, keep learning, stay safe. Bye bye.